Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. So, my dear fellows, today I want to discuss a subject of the proliferation related disorders of the bone marrow, and that is the lymphoproliferative disorders. So proliferative disorders related with the reticuloendothelial system oblique the bone marrow are the myeloproliferative disorders, which I have already taken about 7 sessions on that to clear this. The second part is the lymphoproliferative disorders. Now this is the very diverse type of disorders, lymphoproliferative disorders. First, you have to understand the different terminologies related with these disorders. Because bone marrow, you know that about the bone marrow is concerned. But you should know what do you mean by the reticuloendothelial system and connective tissue and what are lymphocytes. These are the basic things before learning this very diverse group of disorders. These disorders are most debatable in the history of medicine. So one group of the oncologists, hemo-oncologists, do not follow the other oncologists, hemo-oncologists or histopathologists. So they argue the classification of these disorders. As far as the major classification is concerned, major I will say, clinical classification of this, I can divide into acute lymphatic leukemia or chronic lymphatic leukemias or Hodgkin lymphomas and the non-Hodgkin lymphomas. And included in it is the plasma cell disorder like plasmacytomas, multiple myelomas or Waldenström macroglobulinemias, because they are all derived from the lymphoproliferative lymphatic system. The scenario is given in front of you. I am Professor Sayyid Ali, and I am talking about these disorders and representing the visiting professor of medicine, internal medicine, Jinnah Sindh Medical University, Karachi. A scenario is given, and it is you can say it is not a grey case, it is a true case. This case was seen by me in 2006. It is 2006. Now, a 32-year-old male engineer, he was electrical engineer, he was a smoker, although he left smoking 2 weeks before. Experienced dry cough, first of all, for the last, you can say 3 months. And the remittent type of the fever, he described this fever is remittent, means that it is never touches the normal, although it is very near to the normal, 99.5, but it goes up to 103, 104. And he got a significant weight loss, 10% at least lost, occurred in 3 months. And then he experienced night sweating, nocturnal sweating. देखिए नाइट के अंदर जो है एबनॉर्मल फिनोमेना जितने भी होंगे जो कि नॉर्मल होते हैं डे में, और वही चीज़ आपको नाइट में नज़र आएगी, वो हमेशा जो है वो रेड फ्लैग साइन हो जाएगी उस डिजीज़ का. जैसे पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिज़नी है, दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रात को सोया तो जो है ना वो ब्रीदिंग जो है ना उसमें हिंड्रेंस आने लगा, ये पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिज़निया है. इसी तरह नाइट हेडेक्स है, ये सारे अलार्मिंग साइन हैं. ये नाइट मिग्रेनस अटैक हैं, ये भी जो है ना सारे के सारे रेड फ्लैग साइन हैं. क्लिनिकल एग्जामिनेशन में टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पल्स है,
इनकी 110 beats per minute थी, blood pressure इसका 110/70. Mild splenomegaly means 2 centimeters hardly it was palpable. But jugulo higher lymph nodes, jugulo-digastric lymph nodes, submandibular lymph nodes on both sides palpable of 3 centimeter size, and they are non-tender, they are shorty type of lymph nodes. Smooth outline. Lab investigations were done and hemoglobin was 9 gram, and it is the anemia was normocytic at that time. The TLC was 4,800. Differential count was 47%. Neutrophils, lymphocytes are 45%, slightly increased. Eosinophil 5%, basophil 3%. Slightly higher side. These two are higher sides. The platelets were at 1,20,000. It is the decrement of the platelets. Mild thrombocytopenia with ESR 60 millimeter first half hour. First hour means the 60 millimeter it is. The lab investigation is bilirubin. In this case is 2.92 milligram per deciliter. Direct bilirubin was 0.78. You minus it, so it will come around, you said something about 1.9 or something like this. So it is the latent jaundice he has, because above 3 milligram it is the apparent jaundice. Between 1 milligram to 3 milligram it is called latent jaundice. So he has got the indirect hyperbilirubinemia because the enzymes were normal, ALT 35, AST was 28, and alkaline phosphatase was 115. It's normal again, and gamma GT was 25 is normal. It is the prehepatic type of the jaundice, or you can say it is a hemolytic jaundice. He developed hemolytic jaundice along with the lymphadenopathy. The radiology, the chest X-ray PA view shows the bilateral, hilar, and paratracheal lymphadenopathy. I was teaching the radiology to some of the students. I had taken about, I think, more than 14 or 15 sessions on how to report the X-ray chest PA view plain radiology. To this, now this is what's happening here. Now this is, look, the upper part of the mediastinum is enlarged, and it looks the margins of this from here to here. You see the margins of this opacity. It is irregular on the left side, slightly irregular on the right side. Left side and it is more regular on the right side. This is trachea, and along with this margin is going up and up and up. Here also, and slightly here up and up and up here. They are paratracheal lymph nodes which are enlarged, and this group is non-muscular shadow. Most probably these are lymphadenopathy of the hilar and perihilar group or carinal group. There are a lot of groups are there in this para-aortic and the carinal, or the, you can say, the perihilar, hilar. A lot of lymph nodes are there in this area. On the lateral view, the heart is normal, but look at this part is hazy one, and look, this is line which is going up, and here this is going irregular in shape. These are the group of the lymph nodes which are eminent in this X-ray plane, although he needs more investigations. To drag the soft data in this patient is drag it. The soft data that he is a male and he was a smoker, he is a young person, and he is anemic and so on and so on. And the hard data means that specifically you are moving toward the diagnosis. The fever was remittent. He has got hemolytic jaundice. There is a lymphadenopathy of the group which I have said, just mentioned you, mild splenomegaly.
And these are the hard data. It signifies the tapering of the differential diagnosis. Differential diagnosis is manifold. The suggested one in our country is tuberculosis. It is the most common diagnosis which can involve this system, lymphatic system. Then Hodgkin lymphoma or non-Hodgkin lymphomas. It may include the acute lymphatic leukemia. It may include the chronic myeloid lymphatic leukemia. Sarcoidosis is another important cause of the lymphadenopathy. And another one which are the what we say as the deep fungal mycosis. Chronic liver disease can cause lymphadenopathy. Very severely anemic patient can cause this problem, and the hemolytic anemia causing the lymphadenopathy. It means that hemolytic anemia is differential diagnosis. So I have already taken a class of long duration on the hemolytic anemia, and fitting into it is autoimmune hemolytic anemia. It is probably because the lymphatic system involved. To me, it looks like that this is the possibility, because this is not associated with this. There may be possibilities of this because of warm antibody type of the lymphomas are associated with hemolytic anemias, autoimmune hemolytic anemias. This is the most probable diagnosis, and I picked up on at OPD to confirm this diagnosis. Now, confirm the diagnosis, you have to go for the direct evidence. Other than that, you go the HRCT and the liver function test and work up whole body. Exclude tuberculosis, of course. Exclude AFB should be done in this patient and for the gene expert before going to this diagnosis. You have to exclude this one. Now the discussion is open to all students and fellows. Now, hematopoietic malignancies. Lymphoma is general term for the hematopoietic solid malignancies. They are solid of the lymphoid series. ये एक जुमला है lymphoid. पहले तो आपने माइलॉइड की बात की थी, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे lymphoid की बात कर रहे हैं. माइलॉइड वाले से तो माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स ओरिजिनेट हो गए. अब लिम्फॉइड जो मोची थी उसकी, उससे जो है ना जो प्रोलिफरेटिव सिस्टम डेवलप होगा वो लिम्फोप्रोलिफरेटिव सिस्टम डेवलप होगा. अब ये वर्ड जो लिम्फॉइड लिखा हुआ है खाली, अब ये बहुत ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी ब्रॉड है ये, और इसके अंदर जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों को समझना होता है, फिर आपकी बात समझ में आएगी. अब एक आते हैं लिम्फोसाइट. अब कह देते हैं लोग लिम्फोसाइट्स. लिम्फोसाइट जो है ना मामूली चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है. इसके ऊपर जो है ना आप समझ लें कि अगर इसको हम समझने के लिए बैठे कि ये लिम्फोसाइट होते क्या हैं, कहाँ से ड्राइव होते हैं और क्या होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, फिर उसके बाद इसकी एबनॉर्मलिटीज़ क्या होती हैं या ये होती है, तो उसमें घंटों निकल जाएंगे. समझे एक किताब तैयार हो जाएगी इसके ऊपर. इतना ख्याल कीजिएगा कि ये जो चीज़ होती है मामूली चीज़ नहीं है. लिम्फॉइड लिम्फोसाइट्स उससे ड्राइव जो होती हैं बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, इंटर रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हैं, जो कि आप बाद में देखेंगे वो क्या होती हैं. अब ये लिम्फोमा जो है ना वो जो है इसमें दो चीज़ें, या तो बहती हुई चीज़ हो जो कि ल्यूकीमिया है, ज़ाहिर वो सॉलिड ट्यूमर नहीं है, जैसे एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकीमिया है मिसाल के तौर पे, वो बहती हुई चीज़ नहीं है. और प्लाज्मा सेल मायलोमा है, वो भी सॉलिड चीज़ नहीं है, वो भी जो है ना वो स्टैटिक चीज़ नहीं है, वो सॉलिड ट्यूमर नहीं है वो. लेकिन जो दूसरे हैं वो लिम्फोमास आर द कैंसर्स, दे आर सॉलिड मैलिग्नेंसी of a lymphocyte, deriving from a lymphocyte, from the transformation of the lymphocyte malignancy. And many lymphomas are known to be due to specific genetic mutations.
वो आप कहते हैं ना एच एल ए होता है, ह्यूमन एंटीजन होता है, और मेजर हिस्टोलिटिक कॉम्प्लेक्स MHC आपने पढ़े होंगे। ये सारे जो ताल्लुक रखते हैं लिम्फोसाइट से ताल्लुक रखते हैं, ये वहीं से ये लेते हैं, मैच करते हैं इसको, और वहीं से हर डिजीज़ जो होती है उसका अपना HLA होता है, स्पेसिफिक MHC। हर डिजीज़ जो भी दुनिया की आप निकालेंगे, उसके अंदर कोई म्यूटेशन हो जाए उनके जेनेटिक में, लिम्फोसाइट की बात हो रही है, तो वहाँ पे ये टर्न आउट हो जाएगा लिम्फोमा में। फॉलिकल हो जाए, फॉलिकल जो लिम्फोमा के अंदर यानी लिम्फ नोड में फॉलिकल्स होते हैं, ड्यू टू ओवर एक्सप्रेशन ऑफ BCL2 जीन दैट ब्लॉक द प्रोग्राम सेल डेथ, उसको वो क्या करता है कि ब्लॉक जो होता है वो कर देता है। जब द प्रोग्राम सेल डेथ एपोप्टोसिस होने नहीं देता, जब एपोप्टोसिस नहीं होने देता तो हाइपोप्लेजिया हो जाएगा, हाइपोप्लेजिया के अंदर म्यूटेशन और डेवलप होगा तो फिर वो मैलिग्नेंसी हो जाएगी। अब इसको क्लियर कीजिए पहले, लिम्फेटिक सिस्टम क्या है कि मेड ऑफ द ऑर्गन सच एज टॉन्सिल, स्प्लीन, लिवर, बोन मैरो एंड नेटवर्क ऑफ द lymphatic vessels that connect the glands which are called lymph nodes. So lymph nodes plus bone marrow plus reticular liver and spleen and the tonsils, it will create what is known as lymphatic system. तो lymph node जो है वो एक ग्रुप है lymph nodes का जो located towards the body, draining lymph nodes कहते हैं इसको, कनेक्टिंग जो lymphatic channels है, और नोड जो है वो इसमें इफरेंट भी है। लिम्फ नोड्स जो है फिल्टर फॉरेन पार्टिकल आउट ऑफ द लिम्फेटिक फ्लूइड, उसके अंदर फ्लूइड आ रहा है, ये लिम्फेटिक बहुत इंपॉर्टेंट फ्लूइड है, उसको फिल्टर करते हैं ऑफ कोर्स टू द मेन लिम्फेटिक चैनल, और बाद में जो है ना वो सिस्टर्ना चिराई से या राइट लिम्फेटिक डक्ट से जो है वो वीनस सिस्टम में आ जाते हैं, इस तरह से राइट साइड ऑफ द हार्ट में चले जाते हैं। ये इनका एंड होता है। तो दो टाइप के लिम्फोसाइट्स होते हैं, अगर लिम्फोसाइट्स को आप देखेंगे तो B लिम्फोसाइट्स हैं और T लिम्फोसाइट। T लिम्फोसाइट ज़्यादातर सेलुलर इम्यूनिटी जो आपकी होती है उसको डेवलप करती है, T लिम्फोसाइट, और B लिम्फोसाइट जो है ना वो B जो होती है वो लिम्फोसाइट्स हैं जो कि ज़्यादातर जो है वो जो इम्यूनिटी डेवलप करती है वो दूसरी इम्यूनिटी डेवलप करती है, जिसमें एंटीबॉडीज बनती हैं, ह्यूमोरल इंटू जिसको आप कहते हैं। तो ह्यूमोरल टाइप की जो है वो अगर इम्यूनिटी डेवलप होती है तो B से होती है प्रीडोमिनेंट, और T लिम्फोसाइट से जो इम्यूनिटी डेवलप होती है आप में वो सेलुलर इम्यूनिटी डेवलप होती है। ये दो इम्यूनिटी डेवलप होना बहुत ज़रूरी है अगर आप बचना चाहते हैं डिजीज़ से, जो इन्फेक्टिव डिजीज़ है ख़ास तौर पे। B जो है सेल जो है वो ड्राई होते हैं ज़्यादातर, वो बर्सा और फेब्रिकेसिस, ये बर्ड्स में होता है। ये B इसी के लिए मेंटेन किया है, ये इक्विवेलेंट होता है थाइमस के ह्यूमन में, तकरीबन कह सकते हैं, नॉट ऑल, करीब कह सकते हैं। इसलिए थाइमस का होना ज़रूरी होता है। एक के बाद एज के बाद इसका फंक्शन नहीं होता, क्योंकि वो क्या करता है, इंडोर्स कर देता है इम्यूनिटी पूरी जिस्म को। क्या करता है कि इम्यून जितनी भी बॉडी के जितने भी आपके पाए जाते हैं एंटीजीन्स जो इन विवो पाए जाते हैं, उससे ये मैच करा देता है इसको। जब मैच करा देता है तो उसके लिए ये क्या होता है कि वो उसका पार्ट बन जाता है। ये इसी तरह से T लिम्फोसाइट जो हैं वो ज़्यादातर ड्राइव होते हैं इंटेस्टीन के साथ, बर्सा फेब्रिकेसिस और T लिम्फोसाइट, सॉरी बर्सा फेब्रिकेसिस जो है बर्ड्स में होता है और T थाइमस से होता है। आई एम सॉरी अबाउट इट, मैंने इसको इंटरमिंगल कर दिया। तो ये जो है ना ये B, ये जो है ना ये इंटेस्टाइनल जो आपके लिम्फेटिक्स हैं और रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम है, इसमें सब चीज़ें शामिल हैं इंटेस्टीन में, GI ट्रैक्ट में, वो जो होती है ह्यूमरल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, और वो ज़ाहिर है वो बोन मैरो में भी होती हैं। और T लिम्फोसाइट्स जो होते हैं थाइमस डिपेंडेंट होते हैं, और थाइमस डिपेंडेंट लिम्फोसाइट ये क्या कहते हैं कि ये मैच कराते हैं, ये इनका काम होता है मैचिंग कराना, इंटरनल इन्वायरमेंट को मैच कराते हैं ये,
कि इसके अलावा कोई भी चीज़ टकराएगी तो उसके लिए ये जो है ना वो क्या होगा कि जंग का आगाज़ कर देंगे, ये जंग का आगाज़ कर देंगे। इसी तरह बी जो होता है उसका ये काम ये होता है कि वो ह्यूमरल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करे, या IgM करे या IgA करे, उसके अपने फंक्शन हैं ह्यूमरल के, जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसका। वो एंटीजीन जब जाएगा तो इन्हांस होगा ना, लड़ेगा वो। अब यहाँ पे तो ये है कि इसके अंदर ज़रा भी इन्फेक्टिव बस आया वो फौरी तौर पे जो है ना एक्टिवेट हो जाएंगे और उससे उसके लिए इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस जो होता है, आपने पढ़ा होगा एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या होता है और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन क्या होता है। इसमें जो ख़ास बात है वो ये है कि ये लिम्फोसाइट जो है ये मल्टी पोटेंट सेल्स है, ये आम सेल नहीं है। ये लिम्फोसाइट जो है बी हो या टी हो, ये दोनों लिम्फोसाइट जो होते हैं ये मल्टी पोटेंट सेल होते हैं। खासतौर पर लिम्फोसाइट टी वाले जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसी भी दूसरे लिम्फोसाइट रिलेटेड टिश्यू में, वो कन्वर्जन दे सकते हैं। उनमें बहुत बड़ी कैपेबिलिटी होती है इस बात की। जैसे मैक्रोफेज बन जाते हैं ये, जो आपने पढ़े होंगे, ये जो है कन्वर्ट कर लेते हैं अपने आप को फैगोसाइट्स के लिए, ये कन्वर्ट कर लेते हैं आपको ये वाले जो सेल्स हैं लिम्फोसाइट्स, ये मास सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो होते हैं ये टिश्यू हिस्टोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो होते हैं जाइंट सेल बना देते हैं, जो आपने देखे होंगे मुख्तलिफ डिजीज़ में, ये सब वहाँ से ड्राइव होते हैं। ये मामूली चीज़ ना समझें इसको, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और इसीलिए जो है वो हेमाटोलॉजिस्ट की आपस में जो यानी जब अबनॉर्मल इनकी जब वो हो जाती है, फंक्शन हो जाता है, तो वहाँ आपस में इख्तलाफ पैदा होता है। क्योंकि इसके अंदर म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन से फिर वो सॉलिड ट्यूमर कुछ ड्राइव होते हैं, कुछ जो होते हैं नॉन सॉलिड होते हैं। उनमें जो है ना वहाँ पे इख्तलाफ पैदा होते हैं क्लासिफिकेशन के अंदर। अब ये देखिए मैंने पूरा लिम्फेटिक सिस्टम इसमें फुल दिखाया गया है पूरी बॉडी का। तो ये पूरा लिम्फेटिक सिस्टम है। तो इसके अंदर आप जो है ना कनेक्टिव टिश्यू को भी डाल दें, अगर कनेक्टिव टिश्यू जो बॉडी के अंदर होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू तो पता है आपको क्या चीज़ होती है, तो कनेक्टिव टिश्यू में डाल दें, उसमें फाइब्रोब्लास्ट भी होते हैं, उसमें कोलेजन फाइबर्स भी होते हैं, वो भी इसमें ऐड करेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम को अब ऐड करना है आपको उस सिस्टम में जो कनेक्टिव टिश्यू जिसे आप कहते हैं, और फिर उसको दोनों को जमा करके आप जो है ना मैरो के अंदर चले जाएँ, बोन मैरो में। तो बोन मैरो के अंदर जो सिस्टम डेवलप हो रहा है और जो एक्स्ट्रा हेमोपोएटिक सिस्टम है बॉडी का, लिवर है, स्प्लीन है, उनको भी आप जमा करें। अब इन सब चीज़ों को आप जब जमा कर देंगे प्लस प्लस प्लस, तो ये कहलाता है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। यानी मकसद कहने का ये है कि इसके अंदर जो है ना वो आपको जो वेसल के अंदर जो एंडोथेलियल सेल होते हैं वो भी इसका पार्ट है, कन्वर्जन हो जाता है उनका। अगर वो चाहें जंग में हिस्सा लेना तो ले सकते हैं और लेते हैं, जब भी वो सारे प्रोसेसेस नज़र आते हैं आपको, फिनोमेना जो आप देखते हैं। और इसी तरह से डिजीज़ ओरिजिनेट करती हैं फिर वो वास्कुलैटिक डिजीज़ जो कहलाती हैं, जिनकी 1000 की तादाद में है। तो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के डिसऑर्डर को अगर मिनिमाइज करते हुए चले जाएंगे और पहुंच जाएंगे आप फिर लिम्फेटिक सिस्टम पे, फिर पहुंच जाएंगे लिम्फ नोड इंटरकनेक्टिव सिस्टम में, जो उनका कम्युनिकेशन है एफरेंट और लिम्फेटिक्स और इफरेंट लिम्फेटिक्स वगैरह पे, वहाँ के महदूद होकर बात करेंगे तो फिर वो अलग डिजीज़ बन जाएंगी, और उधर से दूसरी तरह बात करेंगे तो दूसरी टाइप की डिजीज़ बन जाएंगी, और इसी तरह से अलग अलग डिजीज़ ही बनती चली जाएंगी। अब सेल विद हाई पोटेंशियल, इसको समझिएगा बात को, ये स्टेम सेल्स हैं जो आप लेके पैदा हुए थे, जो आपकी माँ ने और बाप ने आपको अता किए, वो आगे चले इससे। माँ बाप ने ऐसा नहीं किए, बल्कि इसके ऊपर चले जाए, आपकी नस्ल ने आपको अदा किए, नहीं इससे भी पीछे चले जाएं आप, कि वहाँ तक चले जाए, वहाँ तक चले जाए जब अल्लाह ने इंसान को क्रिएट किया था। उसने क्या किया था कि स्टेम सेल जो है ना वो बना के दिए। ये स्टेम सेल बने हैं उस वक्त जब अल्लाह ने इंसान की तख्लीक की या फिर जानवर की तख्लीक की,
उसके बाद इसी तरह से उसमें एक सिस्टम डेवलप किया है। इसमें जो ताकत है वो ये 4 टाइप के सेल्स हैं, और इससे पूरी की पूरे जिस्म की जो है बॉडी जो होती है वो कंपोज होती है। टोटीपोटेंट सेल्स हैं, प्लूरीपोटेंट सेल्स हैं, मल्टीपोटेंट सेल्स हैं, यूनिपोटेंट सेल्स। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार, कुरान में जो है बार बार जिक्र किया गया इस बात का। सोचिए आप ज़रा, वो जो समंदर के किनारे जो रेत जो हो जाती है, फिर वो जम जाती है, फिर वो ख़राब हो जाती है, वो मिट्टी स्पेसिफिक होती है। अगर आप उसकी एनालाइजेशन करें तो देखिए उसमें क्या क्या चीज़ पाई जाती है। उसके अंदर आप ऑर्गेनिक मटेरियल देखिए, उसका इनऑर्गेनिक मटेरियल देखिए। उसको पहले तो जमा किया गया, फिर उसमें क्या किया गया, उसमें फूंक मारी गई है। अल्लाह ने जो कहा कि कुन हो जा, अब वो जो सिस्टम बनाया है अल्लाह ने, वो इस तरह बनाया है कि स्टेम सेल से ओरिजिनेट करेगा ये। और वहीं पे अल्लाह ने जो है ना आदम को बताया था, सिखाया था, जो उसकी मेमोरी के अंदर चला गया, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में। कुछ इस्मा सिखाए थे ना कुरान जो सूरह बकरा में है, वो जो सिखाया है अल्लाह ने, वो अब तक नस्ल दर नस्ल होता हुआ चला आ रहा है, और उसका मुकाबला नहीं कर सकते आप। ज़ाहिर है अगर आप सुपर एनिमल हैं तो इसलिए नहीं है कि आप ताकतवर हैं, आप जिस्म के लिहाज से तो हाथी ताकतवर है, लेकिन ब्रेन के लिहाज से, कैपेबिलिटी के लिहाज से, फैसले करने के लिहाज से, किसी भी लिहाज से, रिसर्च के लिहाज से देख लें तो ह्यूमन का जो ब्रेन है वो बहुत आला ब्रेन होता है। वो अपनी राह मुंतखब करता है, अच्छाई की तरफ जा सकता है, बुराई की तरफ जा सकता है, जहाँ भी चाहे वो जा सकता है, उसको इख्तियार दे दिया गया। वो स्टेम सेल थे असल में जिन्होंने बॉडी को क्रिएट किया, और टोटीपोटेंट सेल है, प्लूरीपोटेंट सेल है, मल्टीपोटेंट सेल है, यूनिपोटेंट सेल। आप वहाँ से ले लेना इस बात को। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई थी कि जिसमें जो था, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन था वो पागल हो गया था एंड में आने के बाद। वो समझ में नहीं आ रहा था उसके कि ये ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है। फिर उसने मजबूरन जो है ना फिर उसको तफसीर पढ़नी पड़ी कुरान की, वहाँ से उसको जो है ना क्लू मिले थे। ये मैं आपको तारीखी फैक्ट बता रहा हूँ। अगर उसको कुछ और मौका मिल जाता, क्योंकि वो यहूदी आदमी था, यहूदी लोग जो होते हैं बस सख्त मिजाज होते हैं। अगर ये बंदा यहूदी नहीं होता, फ़र्ज़ करें दूसरी कौम से ताल्लुक़ रखता तो वो इस्लाम को कबूल कर लेता। इसमें जो है ना 1400 साल पहले एक उम्मी के ऊपर ये किताब नाज़िल की गई है, ये ख्याल कीजिएगा। उसका कोई इल्म नहीं था, लेकिन कुरान में जो जिक्र किया गया है इन सब के बारे में बताया गया है आपको। मैं इतना टाइम नहीं है इस मौजूद पर बात करूँ, लेकिन बहरहाल ये है कि जो मैंने बात की वो इसको इस बुनियाद पे बात कर रहा हूँ जो मैंने लिखी है। स्टेम सेल क्या चीज़ है? ये अनडिफरेंशिएटेड सेल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म which is capable of giving rise indefinitely more cell of the same type, and from which the other kinds of the cell arise by differentiation. यानी ये आपका सुपर सेल है। ये जो है ना, ये सेल जो है ना, ये वो सेल है जो बनाएगा, टोटीपोटेंट सेल बनाएगा, कैन फॉर्म ऑल द सेल टाइप। जितने भी बॉडी के अंदर है इसमें को बताइए बना सकता है, चाहे आप मेसोडर्मल बोलते हैं, चाहे वो एक्टोडर्मल से टाइप हो, चाहे वो एंटोडर्मल से हो, चाहे जहाँ से भी हो, वो हर जगह से बना सकता है टोटीपोटेंट सेल्स। और ये जो होता है फर्स्ट कपल ऑफ डिवीजन आफ्टर फर्टिलाइजेशन आर द ओनली सेल्स दैट एम्ब्रियोनिक सेल्स है, टोटीपोटेंट सेल्स कैन फ्रॉम ऑल द सेल्स प्लस दी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक। इसमें इतनी पावर होती है कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक भी बना दी। प्लासेंटल सेल भी यही बनाता है। प्लूरीपोटेंट सेल्स का ये होता है कि ये वो सेल्स हैं जो कि आपको 3 लाइन में यानी ग्रुप में डिवाइड करके बनाते हैं। या तो एक्टोडर्मल सीरीज बनाएंगे, या एंटोडर्मल सीरीज बनाएंगे, मेसोडर्मल सीरीज बनाएंगे। लिहाजा ये प्लूरीपोटेंट सेल्स जो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा इनमें। ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स that make up the body, embryonic stem cells are considered pluripotent. Embryonic जो stem cells हैं उनकी, not extra embryonic, वो जो होते हैं pluripotent सेल होते हैं।
उससे जो ड्राइव किया गया है वो मल्टीपोटेंट सेल्स, ये वो सेल्स हैं जो कि एक्टोडर्मल है या एक्टोडर्मल है या एंडोडर्मल है। ये इस सीरीज के अंदर अगर एक्टोडर्मल से ड्राइव होंगे तो एक्टोडर्म में जा सकता है, मेसोडर्मल को नहीं बना सकता। लेकिन प्लूरिपोटेंट तो इसमें बना सकता है, वो किसी में भी जा सकता है, उसका कोई पता नहीं है। तो टेराटोमास जो है ये टोटीपोटेंट मल्टी प्लूरिपोटेंट सेल से ड्राइव होती है। लेकिन डर्माइट से जो होती है वो मल्टीपोटेंट सेल से एक्टोडर्मल ज़्यादा होती है ओरिजिनेशन उसका। मिसाल दे के बता रहा हूँ। तो एंटोडर्मल या एक्टोडर्मल या मेसोडर्म में जो है ना डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं, अपनी अपनी सीरीज में होंगे बस। और वहाँ से ये होगा कि अगर जो यूनिपोटेंट सेल वे है, ये स्टेम सेल ओनली वन सेल टाइप, ये एक लाइन में जा सकता है। मिसाल के तौर पर जीआईटेक की जो सेल्स हैं, अगरचे वो के एंटोडर्मल सेल्स हैं, तो अपने अंदर डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। इसी तरह यूरोजिनल सिस्टम की सेल भी एंटोडर्मल है, वो भी जो है ना अपनी सीरियल में डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं। लेकिन वो चाहेंगे जीआईटेक के अंदर कन्वर्जन कर दें, उनकी स्पेसिफिसिटी लेके आए, वो नहीं ला सकते। तो यूनिपोटेंट सेल उनको कहते हैं। तो इसलिए हम जो है ना, हम ये क्या कहते हैं कि गैस्ट्रिक जैसे पैराइटल सेल्स हैं वो यूनिपोटेंट सेल है। मिसाल के तौर पर मैं इसी तरीके से जो ब्लैडर है उसके अंदर जो सेल्स आपने पढ़े थे, जो 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 लाइनिंग सेल्स हैं उसके, वो यूनिपोटेंट सेल है, वो अपने ही सीरीज में डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं। जब ये समझ में आ गई बात, तो अब वहाँ से उन सीरीज को पकड़ें स्टेम सेल से, जो माइलॉइड सेल वाली सीरीज है और मल्टीपोटेंट लिम्फोसाइटिक सीरीज है, जिसको मैंने अभी डिस्क्राइब की कि लिम्फोप्रोलिफरेटिव सिस्टम differentiate and mature into 3 types of lymphocytes। अब ये जो है 3 टाइप के लिम्फोसाइट में डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं। ये मल्टीपोटेंट सेल है, टी लिम्फोसाइट में, बी लिम्फोसाइट में नेचुरल किलर सेल NKC। ये 3 सीरियल ऑफ सेल्स में, पहले तो 2 होते थे, अब नेचुरल किलर सेल्स वो भी डिस्क्राइब किया इन्होंने कि ये अलग मॉइटी है। लिम्फोसाइट लिम्फ नोड्स में, स्प्लीन में, बोन मैरो में, लिम्फेटिक वेसल में मिलते हैं आपको। 20% वाइट ब्लड सेल्स ब्लड आर लिम्फोसाइट्स होते हैं, 20 to 40%। टी सेल की टाइप होती है, या बी सेल होंगे या नेचुरल किलर सेल्स होंगे। बी सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ह्यूमरल इम्यूनिटी। टी सेल हेल्प बी सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, टी सेल बताते खुद जो है वो सेलुलर इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये खुद भी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब टी सेल एंड बी सेल्स, देखिए इसके ऊपर सारा का सारा जो अभी आप आगे पढ़ेंगे वो इस पर डिपेंड कर रहा होगा कि प्रीडोमिनेंट टी सेल है से ड्राइव हुई कोई चीज़, ये प्रीडोमिनेंट बी सेल से ड्राइव हुई। इमेच्योर लिम्फोसाइट ट्रैवल टू द थाइमस इनटू डिफरेंशिएट इनटू टी सेल्स, टी इज फॉर थाइमस। एंड ये वो है जो कि एक एज में आने के बाद इसकी डिस्ट्रोफी हो जाती है, फिर उसका काम नहीं रहता क्योंकि वो रिकॉग्नाइज कर लेता है बॉडी को, अपनी बॉडी को खुद रिकॉग्नाइज कर लेता है। और इसी तरह इसके अंदर जो है वो ये है कि इमेच्योर लिम्फोसाइट दैट ट्रैवल टू द स्प्लीन और लिम्फ नोड डिफरेंशिएट इनटू बी सेल, यही सेल जो होते हैं ये ट्रैवल करके स्प्लीन में, लिम्फ नोड में कन्वर्ट कर लेते हैं खुद को टी सेल बी सेल में। बी सेल से बर्सा फेब्रिकस which is organ unique to the body where B cells mature. Actually ये B cells ज़्यादातर humoral immunity प्रोड्यूस करते हैं, सेलुलर इम्यूनिटी प्रोड्यूस नहीं करते। लेकिन T सेल डोमिनेटली सेलुलर इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये इनके डिफरेंशिएटिंग पॉइंट लिखे गए हैं, यहाँ से देखे हैं। प्रोजेनेटर सेल्स स्मॉल लिम्फोसाइट्स हैं, और ये जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स हैं। बी लिम्फोसाइट नेटिव जो है ये क्या करेगा, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा, प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो सकता है। ये कन्वर्जन का मैंने पहले से बता दिया था, ये किसी भी जगह डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, ये मास सेल में हो जाएंगे, ये जो होते हैं ये हिस्टोसाइट में ये जाइंट सेल बना देंगे,
ये बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये भी मैंने आपको बताया था HL ए कंट्रीब्यूटरी जो कहलाती है, या मेजर कॉम्पिटेबिलिटी कॉम्प्लेक्स MSC जो होता है इसी से ड्राइव होता है। आप किसी भी ह्यूमन को अगर डिस्क्राइब करना चाहेंगे तो इसके ज़रिए डिस्क्राइब करेंगे। तो ये प्रोजेनेटर अगर जो है इसमें से लिम्फॉइड प्रोजेनेटर हो तो एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकीमिया प्रोड्यूस कर सकता है। यहाँ पे म्यूटेशन होगी और एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकीमिया डेवलप होगा, जो कि चिल्ड्रन में होता है। फिर ये जो होता है यही आगे जाके क्रॉनिक लिम्फेटिक, ये ज़रूरी है पहले कि ALL बने, और फिर उसके बाद वो नेव जो है वो बी लिम्फोसाइट्स में ये कन्वर्ट, चूँकि T लिम्फोसाइट्स बी लिम्फोसाइट में होता है, तो वो जो है क्रॉनिक लिम्फेटिक ल्यूकीमिया प्रोड्यूस करे, या वो सॉलिड ट्यूमर जर्मिनल सेंटर से प्रोड्यूस करे, चाहे वो हॉटकिन लिम्फोमा या नॉन हॉटकिन लिम्फोमा, और एंड जो है वो प्लाज्मा सेल्स को प्रोड्यूस करे, या प्लाज्मा सेल मायलोमा कर दे, या वेल्डर स्टॉम मैक्रोग्लोबुलिनिया कर दे। तो इस सीरियल से बताया गया है कि किस तरीके से ये क्लासीफाई इन्होंने हम कर सकते हैं इसको। यानी एक तरीका तो ये है, इस तरह से आप इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। इसी तरह एक्यूट जो दूसरी सीरीज थी वो एक्यूट माइल्ड ल्यूकीमिया, और सारे मैंने पहले बता दिए थे आपको, जितने भी माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स थे। तो लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर क्या हुए फिर, ये आखिरी बात है। इतनी बड़ी लंबी बहस के बाद ये पता ये चला कि हम अपने नहीं, आसानी के नहीं, एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकीमिया जो सबसे पहली यानी प्रोजेनेटर सेल वो बनाएगा, वो बाद में आगे जाके जो है वो नेव सेल के साथ क्रॉनिक लिम्फेटिक ल्यूकीमिया बना सकता है। ये दोनों सेल जो है ये डायनेमिक सेल्स है, मूव करने वाली। इसके बाद जो है वो सॉलिड ट्यूमर्स हैं, ये वाला लिम्फोमास, हॉटकिन है, नॉन हॉटकिन है। और फिर तीसरा डिसऑर्डर, आगे जो डिसऑर्डर है मल्टीपल मायलोमास, ये वर्ल्ड, ये भी जो है ये डायनेमिक है, मूव करते हैं, ये सॉलिड ट्यूमर नहीं होते। तो एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकीमिया, क्रॉनिक लिम्फेटिक ल्यूकीमिया, लिम्फोमास, मल्टीपल मायलोमास, वर्ल्ड। अब इनको अलग अलग पढ़ना चाहिए, कम से कम इनको अलग पढ़ना चाहिए, इनको अलग पढ़ना चाहिए 2, और इनको अलग पढ़ना चाहिए। तो 4 सेशन होने चाहिए इसमें, तब जाके ये बात समझ में आएगी कि ये लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर होते क्या हैं। आई होप कि आपकी बात समझ में आई होगी, और ये बड़ी मेहनत करके मैंने बताने की कोशिश की है, क्योंकि डाइवर्स डिसऑर्डर है, ये आसान नहीं है समझना, ये बड़ी मुश्किलात हो जाती हैं लोगों को डायग्नोसिस बनाने में। फिर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी को उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। जाते जाते ये याद रखिएगा कि मैं क्लिनिशियन हूँ, मैं स्टेजिंग करूँगा। जो हेमाटोलॉजिस्ट है या ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, हिस्टोपैथोलॉजिस्ट हैं, वो ग्रेडिंग करेंगे, यानी उनको पास जो है डायरेक्ट एविडेंस होना चाहिए, चाहे वो बोन मैरो से लें या लिम्फ नोड से लें या कहीं से भी लें, वो उसको ग्रेड करते हैं, ग्रेड 1 है, 2 है, 3 है। हम क्लिनिकल स्टेज करते हैं। हम जो है TNM क्लासिफिकेशन जो हमने पढ़ी होगी वो क्लिनिकल स्टेजिंग है उसकी। तो हम क्लिनिशियन हैं, तो हम क्लिनिकल स्टेजिंग करने वाले लोग हैं। हम उसको ऊपर उसको मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बना के देते हैं। अगर हमें ग्रेडिंग भी मिल जाए साथ में, तो हम ये बता सकते हैं कि कितना इन्वेसिव ट्यूमर है, ये हमें मालूम चल जाता है उससे, कितना इन्वेसिव है और कितना जो है वो नॉन इन्वेसिव है। तो इससे आप ये आइडिया लगा सकते हैं इन डिसऑर्डर्स का फेट क्या होगा। उम्मीद है कि ये आपकी बात कुछ थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।